السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ محترم علماء کرام، حاضرین مجلس، اب تک اگر آپ نے برداشت کیا ہے چند منٹ اور برداشت کر لیں۔ 15 سے 20 منٹ تک میرا ٹائم ہے، میں اتنے ہی بولوں گا۔ ٹائم تو 40 منٹ دیا گیا تھا لیکن ٹائم ہے نہیں، اس لیے کہہ دیا گیا ہے آپ کم بولیے گا۔ بات چل رہی تھی نکاح اور شادی کی، چونکہ بات چل رہی تھی اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، ابھی بقرعید کے بعد اللہ کا شکر ہے میں نے شادی کی ہے اپنے لڑکے کی۔ جولائی 2022 میں 2 لڑکوں کی شادی ایک ساتھ کیا تھا۔ ان تینوں شادیوں میں ایک پیسہ نہیں، نہ کوئی ایک سامان لیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ حالانکہ دینے والے بہت دے رہے تھے، ہم نے اپنی بچیوں کو دیا ہے، ہم نے کہا کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس لیے ہمیں آپ کے پیسے کی، مال کی، ساز و سامان کی، بیڈ کی، کپاٹ کی، کولر کی، بائک کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ ہاں، میں آپ سے کہتا ہوں جب آپ کی بیٹی کو بات کر کے الگ کروں گا، آپ کو جو کچھ دینا ہوگا اس وقت اپنی بیٹی کو دیجیے گا، لیکن ابھی آپ کی بیٹی میرے پاس ہے، آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اور اس کا کتنا میں شکریہ ادا کروں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی اس طرح سے شادی کرنے کی۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی واقعی معنوں میں اگر مسلمان ہیں، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور پیروکار ہیں، آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ اور میں ایک بات اور کہہ دوں، بات چل رہی تھی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، لڑکیاں غیروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہی ہے۔ لڑکیوں کی غلطی نہیں، ان والدین کی غلطی ہے، والدین کی غلطی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بیٹیوں کے لیے جو معیار بنایا تھا، ہماری بیٹیوں کے لیے لڑکا تلاش کرنے کی خاطر جو معیار بنایا تھا، جو معیار منتخب کیا تھا، وہ معیار ہم نے نہ اپنا کر کے اپنی جانب سے معیار ہم نے قائم کیا، اور اس معیار کا جب لڑکا ہمیں نہیں ملا، ہماری بیٹی 22 سال کی، 24 سال کی، حتیٰ کہ ایسے شادیوں میں شرکت کا اتفاق پڑا ہے کہ 32 سال کی بچی ہوئی اور اب شادی ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ نے نبی کے معیار کو نہیں دیکھا، نبی کے معیار کو آپ نے پرکھا نہیں، نبی کے معیار کو سامنے رکھا نہیں، اپنے آپ کو خدا بن بیٹھے۔ آپ مالدار ہو گئے، آپ خدا ہو گئی، آپ صاحب جائیداد ہو گئے، رازق ہو گئے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا لڑکا غریب ہے، دیندار ضرور ہے، بااخلاق ضرور ہے، لیکن بینک بیلنس نہیں ہے، اس کے پاس بنگلہ نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے۔ میری بیٹی جب اس گھر کے اندر جائے گی
परेशानी का शिकार होगी, इसलिए आप अपनी लड़की के लिए मालदार लड़के को तलाश करते हैं और नतीजा ये होता है कि 4, 6, 8, 10 महीने के अंदर आपकी लड़की की जुदाई शौहर से हो जाती है। मुझे याद है गोंडियार का वाकया है। गोंडियार में पढ़ा रहा था, एक दफा से किसी प्रोग्राम में जा रहा था, 2-4 लोग आए, कहा मेरे साहब एक मसला है। मैंने कहा कल आओ। मैंने कहा मिसवा पे मैं आऊंगा, पढ़ाने के लिए 2 घंटे पढ़ाता था, वहां आ जाना। आए, बात रखी, फोन पर मैंने लड़के से बात किया, फोन पर मैंने लड़की से बात किया। लड़की ने कहा मौलाना मैं इस घर में नहीं जाऊंगी, इसलिए कि काम बहुत करना पड़ता है, काम बहुत करना पड़ता है। लड़की का ये जुमला कैसे निकला, जुरात किसने दी, हिम्मत किसने दी? लड़की के वालिदैन ने ये जुरात दी, लड़की के वालिदैन ने ये हिम्मत दी, ये ताकत और कुव्वत दी, इसलिए कि लड़की के वालिदैन ने लड़के को 15 लाख दे करके खरीदा था, 15 लाख दे करके खरीदा था। अब वो 15 लाख लेकर जाने वाली लड़की जिस घर के अंदर जाएगी काम करेगी, यकीनन काम नहीं कर सकती है, इसलिए कि आपके लड़के को खरीदा है लड़की के बाप ने, लड़की के वालिदैन ने खरीदा है आपको। आपकी जिम्मेदारी है आप खाना बनाएं, आपकी जिम्मेदारी है आप बिस्तरा बिछाएं, आपकी जिम्मेदारी है आप सब कुछ करें, इसलिए कि आप मर्द नहीं रहे, औरत रहे। मर्द की जिम्मेदारी होती है खिलाना, मर्द की जिम्मेदारी होती है पहनाना, मर्द की जिम्मेदारी होती है घर का इंतजाम करना, मर्द की जिम्मेदारी होती है अपने और अपनी बीवी और अहल के आप देख रेख के सारे सामान मुहैया करना। इसीलिए तो रब्बे कायनात ने मर्द को ऊंचा मकाम दिया और अल्लाह ताला ने फरमाया वो बिमा अनफक़ू, इसलिए मर्द कव्वाम है, इसलिए मर्द को हाकिम बनाया जा रहा है, इसलिए कि मर्द खर्च करता है। लेकिन अगर औरत खर्च करने लगे, बज़ाहिर यकीनन वो औरत है, लेकिन खर्च करने के एतबार से मर्द है, और जब मर्द हो गई, मर्द हो करके वो आपके घर में आ रही है, क्यों खाना बनाएगी, क्यों झाड़ू देगी? आप मर्द हो करके औरत बन गए, भिखारी बन करके आप उसके घर पहुंच गए, जाहिर बात है आपके घर आएगी, काम आपको करना होगा। एक और वाक़े की जानिब इशारा करो, 10 लाख लड़की के बाप ने दिया, लड़की गई, साल गुजरा, 2 साल गुजरा, एक दिन उसकी ननद ने कहा दादी अरे चलो कुछ काम हम करो, झाड़ू दो, खाना बनाओ। लड़की ने बरजस्ता जवाब दिया कि तुम खाना बनाओ, तुम्हारे भैया खाना बनाए, मैं नहीं बना सकती। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे अब्बू ने 10 लाख खाना बनाने के लिए नहीं दिया था। ये जुरात किसने दी? लड़के के वालिदैन ने ये जुरात दी है लड़की को। अगर लड़के आपके वालिदैन भिखारी बन के उसके दरवाजे पर न गए होते, फकीर और मुहताज बन के न गए होते, अपने को लाचार और मजबूर बना के न पेश किया होता, अपने आप को हिजड़ा बना करके वहां न पेश किया होता, मर्द बना के अगर पेश किया होता तो ये पैसा नहीं लेता, और पैसा नहीं लेता वो लड़की आती तो इस तरह का जुमला अदा करने की जुरात और हिम्मत उसे नहीं होती। इसलिए मेरे भाई जुर्म हमारा है, गलती हमारी है। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये कहा इज़ा आताकुम मन तर्दौना दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजूहु, जब तुम्हारी लड़की से शादी करने का पैगाम लेकर के ऐसा नौजवान आए जिसका अखलाक तुम्हें अच्छा लग रहा है, जिसका दीन तुम्हें अच्छा लग रहा है, नौजवान आपके घर के दरवाजे पे आया, दस्तक दिया, आपने दरवाजा खोला, अलग सलेक के बाद बैठाया, आपने जियाफत की, मेहमान नवाजी की, बातचीत किया, कैसे आना हुआ बेटा? बेटा जवाब देता है कि आपकी बेटी से शादी का पैगाम लेकर के मैं आया हूं। आप 1 घंटा 2 घंटा उसके साथ रहे, आपको अच्छा लगा, वो दीनदार, वो लड़का अच्छा लगा, उसका दीन अच्छा लगा, उसका अखलाक अच्छा लगा। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़व्विजूहु, अपनी लड़की की शादी उससे कर दो। ये नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, अपनी लड़की की शादी उससे कर दो। और आपने वार्निंग दे दिया, कहा अगर तुमने ऐसा नहीं किया इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीद, अगर तुमने ऐसा लड़का पाने के बाद, नबी कायनात के मियार का लड़का पाने के बाद अपनी लड़की का हाथ उस नौजवान के हाथ में नहीं दिया, तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीद,
जमीन के अंदर एक फितना फैलेगा और लंबा चौड़ा फसाद होगा। वो फसाद आज मुख्तलिफ शक्लों में आ रहा है। हमारी नौजवान लड़कियां छत से कूद रही है, हमारी नौजवान लड़कियां ट्रेन के आगे अपने आप को हिला कर दे रही है, हमारी नौजवान लड़कियां गैरों के हाथ में अपना हाथ डाल करके और बड़े धड़ल्ले और ढिठाई के साथ वालिदैन के सामने बाहर निकल के चली जा रही है। लेकिन वालिदैन की हिम्मत और जुर्रत नहीं होती कि उसे रोक दे, इसलिए कि इसने नबी के मियार को ठुकराया है, नबी के मियार को ठुकराया है, इसलिए बेटी ऐसे बाप को ठुकरा रही है। नबी ने कहा मियार ऐसा होना चाहिए, हमने कहा नहीं मालदार नहीं है, शादी नहीं करूंगा। बहरहाल बात चल रही थी। 2-3 बातें औरतों पर इस्लाम के एहसान के ताल्लुक से मैं बता दूं। बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन 2-3 बातें मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक बात तो ये, बहुत सारे मज़ाहिब में औरतों को सांप, बिच्छू और जहर से भी ज्यादा बुरा समझा गया। जहर से भी ज्यादा बुरा समझा गया कि ये सांप खतरनाक होता है, बिच्छू खतरनाक होता है, जहर खतरनाक होता है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा खतरनाक ये औरत है। हिंदुस्तान में वो धर्म चल रहा है जिसकी यहां ये उसूल है, ये कानून। इस्लाम ने इस औरत को क्या कहा? इस्लाम ने इस औरत को कहा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से वालिदैन के लिए रहमत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से वालिदैन के लिए रहमत है, जन्नत में दाखिले का जरिया है, जहन्नम से बचने के लिए पर्दा और आड़ है ये लड़की और ये औरतें, वालिदैन के लिए जहन्नम में दाखिले का दरिया और सबब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आला जारियतैन, जिसने 2 बच्चियों की परवरिश की यहां तक कि वो बालिग हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तकरीर बंद करूं ना? नहीं, हदीस सुनाई जा रही है, आपकी तवज्जो दूसरी जानिब हुई। ये तौहीन है हदीस की, ये तौहीन है हदीस की। हदीस सुनाई जा रही है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आप दूसरी जानिब देखने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 2 बच्चियों की परवरिश की यहां तक कि वो बालिग हो गई, मैं और वो जन्नत में ऐसे ही होंगे जैसी ये 2 अबुलियां हैं। दोनों अबुलियां बहुत करीब करीब है। माना ये कि खुशखबरी तो ये है कि आदमी जन्नत के अंदर जाएगा, दूसरी खुशखबरी ये है कि आदमी नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। एक और रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बनाते बिशैइन, जो इन बच्चियों के जरिए आजमाइश में मुब्तला किया गया, जैसे आज बच्चियों वाली आजमाइश में मुब्तला कर दी गई, परेशानी का शिकार है, रातों दिन में इस फिक्र में लगे हुए हैं कि मेरी बेटी की शादी कब होगी, कैसे होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके बावजूद वो परवरिश कर रहा है, इसके बावजूद उन्हें दीन की तालीम दे रहा है, इसके बावजूद उन्हें वो अदब सिखा रहा है और उन्हें उनकी अच्छी तरबियत कर रहा है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन्ना सितरम मिनन नार, यही बच्चियां जिन्हें सांप कहा गया, जिन्हें जहर से ज्यादा खतरनाक कहा गया, मजहब इस्लाम ने कहा ये बच्चियां अपने वालिदैन के लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी और जहन्नम में दाखिल नहीं होने देगी ये बच्चियां। इस्लाम का ये एहसान है औरतों पर कि जहां दुनिया वालों ने जहर कहा, इस्लाम ने इन्हें रहमत कहा, जहां दुनिया वालों ने इन्हें खतरनाक कहा, वही नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा, कायनात की सबसे बेहतरीन दौलत औरत है, कायनात की सबसे बड़ी पूंजी औरत है, कायनात का सबसे बड़ा सरमाया ये औरत है। और इसीलिए तो मेरे भाइयों हम औरतों को अंदर छिपा के रखते हैं, इसलिए कि कीमती सरमाया अंदर छिपा के रखा जाता है, लोहा बाहर फेंक दिया जाता है, चाहे बारिश पड़े, चाहे शबनम पड़े, ओले पड़े, धूप लगे, छांव लगे, हम बाहर डाल दिया करते हैं। लेकिन सोना हम कहां रखते हैं
किसी के अंदर ये जुरात और हिम्मत है सोना अपने घर के बाहर दरवाजे के बाहर ले जाकर के रख दे? है हिम्मत? ये हम जो घरों में रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कहा वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, आए औरतों की जमात तुम घरों में मुकीम रहो, घरों में ठहरी रहो, इसलिए कि तुम्हारा मकाम बड़ा है, तुम्हारी बड़ी कीमत है, बड़ी अहमियत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तुम्हारा बड़ा मकाम है, इसलिए तुम्हारे मकाम को कोई छीनने न पाए, इस तुम्हारे इज्जत और नामोस पे, तुम्हारे वकार पे किसी तरह का धब्बा न पड़ने पाए, इसलिए अल्लाह ने कहा कि तुम अंदर रहो, इसलिए कि तुम कीमती दौलत हो। इस औरत को मीरास में हिस्सा नहीं दिया जाता था, न मां की हैसियत से, न बेटी की हैसियत से, न बीवी की हैसियत से, किसी भी हैसियत से इस औरत को हिस्सा नहीं दिया जाता था। इस्लाम आया, इस्लाम ने एहसान किया इस औरत पर और कहा लिर्रिजालि नसीबुन मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुन मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कथुर नसीबन मफ़रूदा। कहा जैसे मर्दों का हिस्सा है ऐसे औरतों का हिस्सा है, जैसे मर्दों का हिस्सा है विरासत के अंदर ऐसे औरतों का हिस्सा है। बेटी की हैसियत से उसे मिलेगा, माँ की हैसियत से उसे मिलेगा, और बहन की हैसियत से उसे मिलेगा, और माँ की हैसियत से भी मुख्तलिफ हैसियतों से इस्लाम ने कहा कि इसे हिस्सा मिलने वाला है। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। पूरी कुरान मजीद की 3 आयतें सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने नाजिल करके औरतों के हिस्से को मुतय्यन करके वाज़ेह तौर पर बता दिया, मर्दों के हिस्से को मुतय्यन करके बता दिया। इस्लाम ने तो एहसान किया था इस औरतों पर, लेकिन आज का अहले हदीस औरतों पर जुल्म कर रहा है। अहले हदीस इसलिए कह रहा हूं कि अहले हदीस गांव और अहले हदीस तमाम बैठे हुए हैं, जुल्म सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन नबी से मोहब्बत का दावेदार, तौहीद का दामन हाथ से थामने का दावा करने वाला कि मैं सबसे बड़ा मुवहिद और सबसे बड़ा तौहीद परस्त हूं, ये इंसान औरतों पे जुल्म करता है। इस्लाम ने जुल्म से रोका, इस्लाम ने उस जुल्म का खात्मा किया और एहसान करते हुए इसे मीरास में हिस्सा दिया। लेकिन आज का ये मुसलमान न अपनी मां को हिस्सा देता है, न बीवी को हिस्सा देने देता है, न बेटी को हिस्सा देने देता है, न भाई अपने बहन को हिस्सा देता है बाप से मिले हुए माल में। बताओ, इस्लाम ने एहसान किया था इन औरतों पर, जुल्म कौन कर रहा है? आज का मुसलमान जुल्म कर रहा है। और इसके बावजूद कह रहा है इसके बावजूद कह रहा है मैं मुसलमान हूं, इसके बावजूद कह रहा है कि मैं हाजी और नमाजी हूं, इसके बावजूद कह रहा है कि मैं अहले हदीस हूं। अल्लाह ताला ने मीरास का तज़किरा करने के बाद कहा तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदबंदी है, अल्लाह के हुदूद हैं, जिसने वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदा, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और अल्लाह के मुतय्यन करदा हुदूद से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला ने फरमाया उसके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर दिया गया आखिरत के मैदान में। एक और बात कह दूं, हमारी माँ और बहनों पर इस्लाम का बहुत बड़ा एहसान कि हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में कायनात में सबसे महबूब औरत, कायनात में सबसे महबूब औरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम अन्निसाउ वत्तीब, तुम्हारी दुनिया की 2 चीजें मेरी निगाह में महबूब बना दी गई, एक औरत और दूसरी खुशबू। एक और रिवायत पर बता दो, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर का जिम्मेदार बना के भेजा। उस लश्कर में अबू बकर भी थे, उमर भी थे। अबू बकर उमर का मकाम क्या है? अंबिया और रसूल के बाद कायनात में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम इंसानों में अंबिया और रसूल के बाद सबसे बड़ा मकाम अबू बकर और उमर का। अमर बिन आस के दिल के अंदर एक बात आई, इंसानी फितरत बात आई, शायद मेरा मकाम नबी की निगाह में अबू बकर और उमर से बड़ा। वापस लश्कर आया, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी कायनात की खिदमत में पहुंच गए और सलाम कर दिया, मन अहब्बुन नास इलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आप बताएं आपकी निगाह में सबसे ज्यादा महबूब कौन? अल्लाह के नबी ने जो नाम लिया कहा आयशा। आयशा कौन है? मर्द की औरत, औरत है। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा मेरी निगाह में सबसे ज्यादा महबूब है। अमर बिन आस ने कहा वो मिनर रिजाल या रसूलल्लाह, ये तो औरत की बात आपने किन मर्दों में बताइए? कहा अबूहा, आयशा के अबू।
پھر پوچھا کہا عمر بن عاص خود کہتے ہیں فسکت مخافۃ ان یجعلنی فی آخرہم، میں نے اس ڈر سے سوال کرنا بند کر دیا کہ ایسا نہ ہو تمام صحابہ میں سب سے لاسٹ میں اور آخر میں میرا نام آئے، اس لیے میں نے سوال کرنا بند کر دیا۔ یہ اسلام کا احسان ہے، محمد رسول اللہ کا احسان ہے کہ محمد رسول اللہ کی نگاہ میں کائنات میں سب سے محبوب عورت ذات ہے۔ ایک اور روایت پیش کر کے بس ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے لیے خوشخبری سنائی، مردوں کے لیے ایسی کوئی خاص خوشخبری نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا وآتت بالہا وحسنت فرجہا فلتدخل من ای ابواب الجنۃ شاءت۔ نبی کائنات نے فرمایا جو بھی عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، پورے رمضان کا روزہ رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، پھر سن لو، جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، پورے مہینے کا روزہ رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، نبی کائنات نے فرمایا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، وہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ اسلام کا احسان ہے عورتوں پر، مردوں کے لیے اس طرح کی خصوصی خوشخبری کوئی نہیں ہے۔ یہ خصوصی خوشخبری اگر ہے تو ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ہے، عورت ذات کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو یہ توفیق دے کہ وہ سمجھے اسلام کے ان احسانات کو جو ان کے اوپر اسلام نے اور رب کائنات نے کیا ہے، اور ان احسانات کو سمجھتے ہوئے احسان مندی کے تقاضے کے مطابق اسلام کے اصول و تلے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔